Recording in progress. Good evening, friends. Just today is the very auspicious day, Devi Pakko start, Mahalaya. So we are also start this fantastic session in our system. What should we do, what not to be do. That is why MFD, what our future. Mr. Nishant Patnaik, who is the from Cafe Mutual, he described us, and our faculty, Madam Sharvani, she will join within 5 minutes more. After that, she will discuss about new session, new syllabus, how to achieve it, and what is the process. Everything she will be shared. Before start the session, we our friends who have cleared the exam NSM 10A 10B old syllabus in last month with the commando training. Only 20 days training. Only 20 days training. They have cleared many of them 2 paper and NSM 2. Some people only NSM 2 and some people NSM 2 and 1 also. Only 20 days program crash course. That time we have done a crash course. They have done. So firstly, I invite them to share their experience. 12 commandos is here. So first I ask to Mr. Arun Mansur. He is the first person who accuracy is in our total system. As per my knowledge, only the person who is 99.99% success ratio and accuracy ratio. He tried 52 question and right answer was 51 and he scored 72.4% marks. That is the catch. So I please, Mr. Arun Mansur, please share. Then Mr. Onshuk Tiwari. After that, Mr. Pankaj Gera. After that, Jyoti ma'am. So please, one by one, our commandos share, because if you are want to clear the NSM 10A 10B, not only book work and knowledge also not only work. This is the tactics is very essential. Tactics and technique. Who already cleared, please hear from them. After that, we can everything will share in near future what we are going to do. So please, Mr. Arun Mansur. Good evening. My name is Arun Mansur. I'm a mutual fund distributor since last 22 years. I have completed my NISM Part A last year under the training of Mr. Bhavesh Ji of Nippon Mutual Fund and under proper guidance of Mr. Gautam Karmakar. So after that, my father expired. I could not complete 10B training. Now this year, suddenly Mr. Gautam Karmakar told me that he will conduct a training which will be called as commando training. Means here the training period will be only for 5 days, and after taking this training we have to appear for exam, because from 29th September the course will be changed. If we want to clear 10B in old module, we have to take this training. So first of all, I hesitated whether I would be able to complete this commando training in a commando mode and will clear the exam. But under the proper stewardship and leadership of Gautam Da, I accepted the challenge.
And then I think 20 people accepted this challenge or accepted this offer and came under the proper trainingship of Mr. Sorbani Rai, who is a very, very, very good teacher, especially for this type of commando training. Actually, she taught us, she showed us how to clear this hurdle in a very scientific or in a very tactical manner. She has showed us. She has opened the door for us. After clearing 10A, I was hearing that 10B was full of numericals, full of maths, full of Excel calculation, in which I was not so good. So I was afraid whether I would be able to complete that. But our revered teacher, Mrs. Roy, he has totally opened the door in front of us. He has totally cleared us. She has marked the important portion. Sorry, I have uttered. I'm sorry for that. She has marked all the important portion that we would read, that we would concentrate. In this way, by completing these 5 commando training days, consisting of 4 hours or 4.5 hours each, I myself got acquainted with the total subject. And I only from that day, from the first day, I was of the opinion that I would only follow her guidance, her instruction, her marked portion. And I have started reading these marked portion very carefully, very minutely. And after that, she started solving all the probable problems, numericals which may come. And from day one, she told that we have to got it hard all the theory questions, because this is the main catch whereby we can got our at least some marks. In case of T20, suppose if we want to go for 4 and 6s from very fast over, and in between we have to change our strike also by taking 1 run, 2 run, thereby just continue our striking rate. This way, Madam taught us that we must got hard all the theories, and we must practice all the theoretical sums time and again. So I have adopted this mantra. I have started practicing the theories or the sums which Madam has given time and again, time and again. So in a day, suppose I have, for next 10 days, I have relinquished all my duties and responsibilities, mainly my distributorship business. I have not looked into it because I am quite aged, 56 years old. I cannot ride on 2 boats. So I left everything, almost left everything, and only concentrated on practicing this sum time and again. And in a day, I have practiced at least 10 times to 12 times all the sums, all the theories. And then I came to a conclusion that there is a negative marking trap. Previously, I heard from hello. Previously, I heard from Gautam da and ma'am that somebody has stopped near the passing marks. Welcome. Hello. So Yes. So in between the course, I heard that somebody has stopped, somebody has failed, touching near 6, that is the pass marks, that is 60, by achieving only 57.5, 58.5. Ma'am has detailed discussed about it in the class. So I took this catch and I thought that, and I just analyzed the reason for this failure coming so near to the pass marks. Then I thought that I should be more and more accurate, and whatever questions I have minimum to minimum doubt, I would not attempt on this question. So accordingly, I prepared myself. I went in the exam hall and I completed all the exam. There are at least 63 questions with all numericals and theories. 68 questions. So I completed all the 53 questions within 1 hour, just leaving 15 questions in which I had minimum to minimum doubt.
I did not want to fall myself into the trap, Bobby trap, that is negative marking. So after completing these 53 questions, I revised from beginning to end, then end to beginning. Thereby, I assured myself that I would not fail. I calculated that I would at least secure 71.5 mark, 0.5. And when the result came out, I got 72.5. I corrected 52 questions right, 1 question wrong. So this way, just by adopting the accuracy method and practice method, I succeeded. I passed my NISM 10B, which I first thought very hard. And from my distributorship world, I also heard that it is a very tough exam. As because I was not so good in Excel type maths, I am admitting now also. So I adopted this mantra and I cleared myself. I am very much thankful to Gautam Da, as also my mentor, Mrs. Sarbani Roy. I am again giving my gratitude to them. And I hope that the persons, that the candidate, that the guys who have joined this course or who are intending to appear for this exam, please follow this guideline, which will be given by the mentor and our great Guru Gautam Da, and you would succeed certainly. It is not at all a hard exam if you follow some tactics. Thank you very much and a happy puja ahead. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. So kind of words. Please, I am not missing any moment now. Now I ask to Mr. Angshuk Tiwari, who is facing the actually his exam with his life exam, and that is his father was at that time admitted in hospital. At that time, I said that this is the real challenge. Please take it and success it. And he is a real hero because he only 20 days he covered 2 exams, NISM 2 first, after that NISM 10-1 2 model with his father also cleared, and now he is very good position. So Mr. Angshuk Tiwari, please. Thank you, Gautam Da. Really, it is amazing as far as the things which I have gone through from last 1 month. Actually, I clearly remember, I think almost 2 months back, I received a message in a WhatsApp group of Gautam Da that there is a, if you want to do the 10A or 10A initially, just fill up this Google form. At that time, I really don't have any idea what kind of, the support I will get if I fill up this form. But I just filled up the form. In first week of September, the 10A training was started. I clearly remember I was attending. I am a full-time job. So my almost 9 to 6 or 6:30 is almost packed. After that, I do my distribution business. So still, I was attending the sessions and I was able to, getting the things clearly. My concepts were very clear. But I remember on 7th or 8th of the 7th, I think 7th of September, मेरे फादर की तबीयत सडनली खराब हो गई एंड मेरे ख्याल से हाँ 2-3 days he was in hospital. So when the 10B training was started, I attended the first session, but I was not sure whether I should go for it or not. But then I got call from Gautam Da, and he motivated me to go for it. As I have already, filled up the form for the examination, so Gautam Da motivated me, to go for it and just try my best. So I was attending the session, but as I was in hospital,
my focus was not on exact 100% on the sessions. Then in the second week, I somehow lost the focus. I'm not denying this. I missed few sessions, but and then the worst thing happened. Because of my job, I had to travel. Initial, I am from MP, Madhya Pradesh, and I booked my exams for Bhopal. But suddenly, when I got a call that I have to travel to Agra, so I cancelled my 10B exam from Bhopal to Agra. Somehow, in the last 3-4 days, I was able to get some time, and I started practicing. The only thing which is in my favor is I am good in maths. So my basic mathematics is good. And I remember I talked to Jyoti ma'am. She also motivated me, and a couple of other participants also. I have talked to them also. And they also, I told them that I'm confident in numericals, but as far as the whole syllabus is concerned, Sarbani ma'am was, I attended few sessions, in hospital, but the point is I was able to, able to get the things what she is trying to convey. तो finally हुआ ये कि जब from 20th I clearly remember from 19th और 20th मैंने अपना practice fully start किया था. तो मुझे मैम का वो याद है, उन्होंने 2 चीजें बोली थी. First is the numericals, the case studies, and the second part is जो भी उन्होंने highlight, जो भी मतलब theory portion था जो कि उन्होंने highlight किया था. So that theory portion was quite huge as far as time is concerned. मेरे पास बहुत limited time था, तो मैंने न्यूमेरिकल्स को, केस स्टडीज को फोकस किया, और लास्ट 3-4 डेज में मैंने उन जो भी केस स्टडीज मैडम ने बताई थी उनको बहुत थॉरोली प्रैक्टिस किया. एंड मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, यदि आप जो भी लोग इसको आगे इस एग्जाम को देना चाहेंगे, यदि आप लोग केस स्टडीज में को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके 60-70% मार्क्स वैसे ही बनेंगे. आप उसमें कोई चांस ही नहीं कि आप फिर एग्जाम क्लियर ना कर पाए. तो थैंक यू सरबानी मैम, आपने जो वो केस स्टडीज बताई थी, 12-15 केस स्टडीज, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दोज केस स्टडीज मैं उन एग्जाम्स को क्लियर कर पाया हूँ. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दोज केस स्टडीज. एंड उसके बाद फिर 10A का शुरू हुआ. 10A में भी मुझे कुछ लोगों ने बताया, मोटिवेट किया. मतलब मेरे पास टाइम का इतना कंसर्न था कि मैं बार बार लग रहा था कि यार छोड़ देना चाहिए, नहीं हो पाएगा. लेकिन मेरे जो क्लासमेट्स थे, बैचमेट्स थे, उनसे जब भी पता लगता था गौतम दा का जो ये ओवरऑल जो तरीका है, जो भी लोग हैं क्लियर होते जा रहे हैं, तो जो क्लियर कर ले रहे थे मैं उनसे बात करता था, उनसे पूछता था कि क्या किया उन्होंने, और उससे मुझे वो बहुत मोटिवेशन भी मुझे मिला कि किस चीज को पढ़ना है. तो उस लिमिटेड टाइम में, अब मेरे पास वैसे ही टाइम कम होता जा रहा था, तो मैंने और लिमिटेड पढ़ाई करी थी. मैं कुछ इसमें वो नहीं करना चाहूँगा कि मेरे पास टाइम कम था, मैंने बहुत लिमिटेड पढ़ाई करी. बट इसमें एक ही चीज़ आप लोगों को मेरी तरफ से एक छोटा सा सजेशन होगा कि यदि आप लोग नॉर्मल अपने डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में जो आपके न्यूमेरिकल पार्ट है उनको करते रहेंगे तो इट वुड बी इजी फॉर एनीबॉडी. यदि हम केस स्टडीज पे शुरू से ही ध्यान देते रहेंगे, उन पे काम, उनको सॉल्व करते रहेंगे, तो आसान हो जाएगा ये चीज़ें. एट लास्ट मैं अगेन मैम को थैंक यू कहना चाहूँगा फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, बिकॉज ऑफ हर इतने कम समय में, इतनी कम टाइम में मैंने वो कोर चीज़ें पढ़ी. उन कोर चीज़ें जो बातें मैम ने बताई थी उनको फोकस किया, और उसी की वजह से मेरा ये एग्जाम क्लियर हो पाया. थैंक यू वेरी मच गौतम दा कि इस टफ पीरियड में जब मैं गिव अप करने वाला था, आपने मुझे गिव अप नहीं करने दिया, और मेरे दोनों एग्जाम्स का सबसे बड़ा क्रेडिट यदि है तो वो गौतम दा को है.
एंड लास्ट में मेरे सारे बैचमेट्स, मैं कहीं पे कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होता था तो उन लोगों से बात कर लेता था, उन लोगों से आइडियाज ले लेता था और थोड़ा सा उनको ही फोकस करके पढ़ता था. दैट इज ऑल. सो थैंक यू वेरी मच गौतम. Thank you so much. Thank you so much. This is the real challenge which you have taken, real challenge of life. And near future, you never missed your opportunity. I think so. So next I call to Mr. Pankaj Gera, who is from Delhi, and he is a senior Dada also, and he is CFA, CFP. Also, he cleared this exam by commando time. Please, Mr. Pankaj Gera. Thank you, Gautam da. In fact, the main credit actually I would like to give it to you कि आपने group को इकट्ठा करके sharing किया. नहीं तो I was not knowing, I had not thought of giving a 10A or 10B for that matter. So, and second is Sabri, the way she took it and the way without looking at the time. मतलब पढ़ने वाले probably हम सब थक जाते होंगे, but she never got tired, and you know her energy level to the last were very high. In fact, hats off to you, Savni ma'am. You had a tremendous source of energy. In fact, the way you shared, the way you motivated us was also there. So I, to be very honest, 10B पे छोड़ के बैठा था. I was not hoping. I had failed already once. Second time मैं मतलब हिम्मत भी नहीं की मैंने, सोचा भी मैं क्या करूँगा. But then I said, let me give it a shot. And when it started, now the very first day, because I still remember the first class with Savni madam, उन्होंने बड़ा confidence दिया था कि you know I will be able to clear that. So I think half the battle was won on the very first day when she gave a confidence कि you know you would be able to, you know, each 100% हम करके जाएंगे and everybody will be able to win. So that was the first thing which I can still remember. The you know सारा वो जो डर या डाउट थे वो खत्म हो गए थे. I think इनका म्यूट कर रहे गणेश. हाँ कर दिया. So that is the thing happened. Then the doubts say, but yes, as Anshuk has also said कि numericals basically were the hard. But किताब को पढ़ करके ना there were many things which we, while we are doing practice, we tend to overlook. हम उसको ना avoid कर जाते हैं. But when we are reading about the book, then we are able to understand कि you know purity aspect भी बड़ा important और बड़ा जरूरी होता है. तो वो उसने कई सारे फंडे क्लियर भी किए. इनफैक्ट मैंने बाहर पे कई चैप्टर्स को I went through them also. So it was very knowledgeable and very gainful on that. जब 10B करने आना था उससे एक दिन पहले मैं कहा 10A का रजिस्टर करता हूँ. I not register for 10A. तो गौतम दा ने कर लो, it will be done, easily done. तो गौतम and Anu both helped me. दोनों ने किताब और वो मटेरियल भेजा. In fact, गौतम दा, the material, the PDF file which you had sent had a 60 days expiry. What used to happen, as soon as you download, you are able to read them, but after that, मतलब अगर आपने आधा घंटा छोड़कर किया तो वो बिल्कुल blank मिलेगा आपको. तो वो जो एक्सरसाइज जो शेयर किया ना, the sample paper जो आपने शेयर किए थे, वो that really helped me out in just one day. 10A got clear. 10 to be to the entire group, clearing 10A is very easy as compared to 10B, and you just need to, मतलब मैंने संडे का दिन लिखा था, मंडे मेरा पेपर था, फ्राइडे मैंने ये दिया था, सैटरडे आई हैड अनदर एग्जाम. आई वाज आल्सो इन्वॉल्वड इनटू QPFP का मेरा एग्जाम था. संडे मैंने इसकी तैयारी करी एंड मंडे को आई कुड क्लियर ऑन दैट 10A को. So, but yes, it really, let's keep on acquiring this certification. At least it keep refreshing our memory. Now I'm told that for PMS also there is a new certification rule which has come up, and so for distribution of the PMS. Take up the next PMS distribution का करना. But yes, पूरा confidence. Thanks to Sarvani ji and Gautam da for motivating me. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. After exam 10B clear, you just asked me, Gautam, can I go for 10A? Why not? Why? When you are clear the 10B, 10A is more easy. So that time, this is really amazing. That was.
nobody can understand how fast they cleared the 10B. After that, they are going for 10A. This is a completely amazing thing was that. So I asked Jyoti ma'am, she is also a mathematician. Please, Jyoti ma'am. Good evening, Gautam sir. First of all, once again, my heartfelt gratitude to your efforts and Sarbani ma'am's guidance that I could clear NISM 10B, which was a a distant dream looking around 20-30 days back. But with your support and motivation and guidance, it was like remarkable. And the complete team which has come together to help each other out, to clear doubts, to give suggestions that how to appear for the exam, and Sarbani ma'am contribution towards underlining each and every line, which is very, very important, and telling how the question will come. Apart from explaining the concept, she has made this very clear that how the question will come in a twisted manner, so that you can hook on to the concept, that this concept is going to be used in the question. I think that was something which was very, very helpful, because when we were giving the exam, I could feel that ma'am voice from behind is saying this question is from that chapter or that topic, because otherwise NISM 10B is really confusing as far as theory is concerned, and slightly difficult as far as numerical is concerned, because most of us, when we pick up the book and start reading, we keep on reading, but we keep on ignoring the numerical things. We think, okay, just we look at in the theory part, this upon this and multiply by this and we will get the answer. This is very simple. But when the same things comes in the exam, we get confused that which number to be put in numerator, which is on denominator. So her constant effort to tell us that keep trying all the questions in the Excel or open office, so that in the exam you are confident that this sum is to be solved in this definite way and the answer which you are getting is correct. So I would say all the other participants have told all the tips and tricks which are required to clear the exam. And obviously the guidance and the support given by Gautam sir and Sarbani ma'am is like, I have no words. Thank you so much. Thank you so much, sir. That's all. So thank you so much. Next I call to Mr. Kirloskar जी, जिन्होंने लाइफ का और एक इंस्टेंट करके रख दिया, जो एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाके एग्जाम देके क्लियर करके आया है, कमांडो, रियल कमांडो है मिस्टर किर्लोस्कर जी. सर नमस्ते. 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 सरबानी मैम नमस्कार. ये एक्सलेंट एक्सपीरियंस था. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ये ग्रुप को गौतम दा ने कमांडो नाम दिया ना, इट इज फैंटास्टिक. जो हमारी ऊर्जा हर वक्त बढ़ाते रहा, कमांडो ये करना है टू अचीव इट, डू और डाई. कमांडो का काम कैसा रहता है कि डू और डाई, ये अचीव करना ही है. सरबानी मैम ने फर्स्ट डे ट्रेनिंग चालू करते वक्त बोला है मुझे 99.99 भी नहीं चाहिए, मुझे 100% रिजल्ट चाहिए. तो that was the energy created in this group, and it was till the exam that energy remains there, because गौतम दा का 360 degrees पूरा mentoring था. Hats off गौतम दा. I really speechless. कुछ शब्द नहीं है हमारे पास कि लास्ट एग्जाम के जाते वक्त तक ये हमें उनका पूरा मेंटोरिंग था. और सरबानी मैम का भी उन्होंने ही बोला था, कभी भी कौन सा भी डिफिकल्टी आ गया तो प्लीज कांटेक्ट
ऑन माय व्हाट्सएप। जब मुझे टाइम नहीं होगा, फिर से रात को 8 बजे के बाद मैं आपको आप फोन कर सकते वगैरह, इतना पूरा सहयोग दिया। फैंटास्टिक, हैट्स ऑफ बोथ ऑफ यू, एंड इट्स इट इज रियली ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस, क्योंकि ये सिलसिला लास्ट ईयर से चालू हो गया। निप्पॉन की ट्रेनिंग से, भावेश सर की ट्रेनिंग थी, तो वो भी फैंटास्टिक। उस टाइम मैं 10 भी कर नहीं पाया, तो बाद में ये जब गौतम दा से मैसेज आ गया कि this is well, the syllabus is going to change on from 30th September, so you have to join, आप ज्वाइन करो। तो पहले द फर्स्ट डे आई वाज बिट हेजिटेटिंग, जैसा सुरंजमय जी ने बोला था कि हेजिटेटिंग कि कैसा हो पाएगा कैसा, लेकिन दैट फर्स्ट डे एनर्जी वाज सो क्रिएटेड, एंड कैसा करना है ये पूरा फोकस्ड ट्रेनिंग था। और जैसे महाभारत में अर्जुन को दैट ये आई ऑफ द फिश दिखती थी, वैसा ही हो गया कि हमें क्लियर करना है, यही ध्यान में थे, बाकी कुछ नहीं। तो इसके वास्ते ही मैं गौतम दा मैं बोलता हूँ, आप दोनों के वास्ते ही ये मैं कर पाया कि ट्रेनिंग सेंटर भी चेंज हो गया मेरा इमीडिएट ड्यू टू NSCIT के सम इमीडिएट अर्जेंट उनका फोन आया कि हम चेंज कर रहे हैं, नहीं तो आपको रिफंड देंगे। फिर भी मैंने सोचा कि कर दे, यस। ये सिर्फ फोन से उन्होंने बात की थी, कुछ ऑफिशियल मेल भी नहीं की थी। ऐसी कुछ सेम केसेस हैपेंड इन महाराष्ट्र, इन अदर प्लेसेस आल्सो, लेकिन विद इन दैट फोन इन 10-15 सेकंड्स आई ओनली कॉन्सेंट्रेट कि हमें एग्जाम देना है, कहाँ पे देना है ये कुछ मायने ही नहीं रखता। We have to go there and do the finish the goal. गौतम दा, ये आपने कमांडो नाम रखा, इसके वास्ते ही हो पाया। Exactly. Yes, ये ध्यान में बैठा कि ये करना ही है। और कोई नहीं सोचेगा मैम ने कि फर्स्ट डे बोला था मुझे 100% रिजल्ट चाहिए, बाकी कुछ नहीं कहना है। और जैसे ज्योति जी ने बोला कि प्रिसाइज पॉइंट्स एवरी टॉप चैप्टर पे कौन से पॉइंट्स आने वाले हैं और कौन से ट्विस्टेड लैंग्वेज में आने वाले हैं, वो भी बता दिया था मैम ने पूरा। और केस स्टडीज की बहुत तैयारी की थी। दऊ जैसे ये बोले कि अंशुक जी की हमारी तैयारी कम थी, लेकिन फिर भी आपसे हम हो पाए। थैंक्स अ लॉट, टन्स ऑफ थैंक्स कि हमें बहुत grateful to both of you. Thank you so much. Another commando who is also बहुत, हाँ, और एक उससे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया, कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है। और एक बात कहना चाहता हूँ, ये एग्जाम 10B जो है ना और 10A भी, ऐसी एग्जाम बहुत कम है जिसमें टोटल प्रैक्टिकलनेस है। जो कुछ बुक में 10A 10B में है, that same we are in it reflect in practice। हमारे MFD प्रैक्टिस में पूरा ज्ञान का उपयोग होता है 100%। ये ऐसा नहीं है कि ये थ्योरेटिकल है, ये नहीं हो पाता। 100% ही उसका that exam is knowledgeable for practice also, not only in theory। ये बहुत कम ऐसे एग्जाम्स रहते हैं कि इन प्रैक्टिस हम उसका नॉलेज का यूज कर सकते हैं। दैट इज द रियल। तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिल गया है। और आगे कोई जो एग्जाम देते जाएंगे, तो ये ट्रेनिंग का और ये शॉर्ट स्पैन में जो किया हमने, उसका बहुत फायदा हो। लॉट्स ऑफ थैंक्स अगेन। थैंक यू सो मच। विनम्र प्रणाम। विनम्र प्रणाम। सेम टू यू। I call to Mr. Bipin ji. Bipin, another commando who is clear first 10 NSM 10B and after that 10A. So Bipin ji, please, within 20 days, within 4 days,
he also cleared 2 papers. Bipin ji, please. Hello. Bipin ji. So, yes, Bipin ji hai idhar? Hai to? Okay, then I don't miss the time. So I ask my nearest dada come, friend come, whatever I say, Mr. Anup Mukherjee from Delhi. Please share your heartthrob कहानी जो किया है. वाह. तारीफ और कैसे क्या 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 बहुत लोगों ने, और उसमें मैं कुछ अलग तो बोल नहीं, पर जो अभी ध्यान में आ रहा है मैं शायद इसको अपने स्टेशंस में डालने की कोशिश, शायद ह्यूमन रेवोल्यूशन में जब एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पहुंचता था एजेस पहले, वो पैदल पहुंचता था, और एक टाइम आया पहिए का निर्माण, तो पहिए से वो काफी फास्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने लगा. मेरा वॉइस नहीं आ रहा क्या? वॉइस नॉट क्लियर, सो अच्छा, अभी थोड़ा ठीक है क्या? थोड़ा, हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए तो ठीक हो जाएगा. अच्छा अच्छा. तो फिर पता लगा कि भाई रेल का आविष्कार हो गया, फिर गाड़ियों का आविष्कार हो गया. एक जमाना आया कि पता नहीं लगता था, जहाज में लोग जाते थे, फिर पता लगा हवाई जहाज का आविष्कार हो गया, इंडिया से अमेरिका जाना बहुत आसान हो गया. आज दुनिया में हम मंगल में जाते हैं, रॉकेट का आविष्कार हो गया. रॉकेट से हम मंगल में लैंड कर गए. गौतम दा ने, शर्बानी मैम ने 4 दिन की ट्रेनिंग से हमें रॉकेट पे बिठा दिया और हम आज 10B पे लैंड कर गए. तो ये इससे एक एक्सप्रेशन है मेरा, कैसे हम एक वास्ट सिलेबस, एक बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट जो कि हम देखते रह जाते थे और शायद हम अटेंड भी नहीं करते थे, और सोचते थे कि ये पता नहीं स्केल करना कितना मुश्किल होगा. और एक ट्रेनिंग, एक जज्बे के तौर पे, एक पुश के साथ, गौतम दा की एनर्जी के को साथ लेते हुए कलेक्टिवली आज हम सब एक मुकाम पे बैठे हुए हैं, जो शायद आज से 15-20 दिन पहले हमारे लिए एक सपना भी था कि नहीं मुश्किल था. तब सपना भी एक होता है कि चलो उसको अचीव करना है, वो भी हम देखते रहते थे. इट्स अ डिजायर, कभी होगा कि नहीं पता नहीं. वी आर सिटिंग ऑन दैट बिकॉज ऑफ शर्मनी मैम, बिकॉज ऑफ गौतम दा, एंड थैंक्स यू. I have that is the expression I think I can express from myself. थैंक यू सो मच. बाकी कमांडो लोग का बात सुन गए, तो हमारा पास आज चीफ गेस्ट आया है निशांत पटनायक. वो भी मेरा अच्छा दोस्त भी है, फ्रेंड भी है, फिलोसोफर भी है, और इंडस्ट्री का तो वेटरन बंदा है. निशांत को मैंने बुलाना चाहता हूँ. और मैडम, बिफोर निशांत स्पीकिंग, मैडम ये प्लीज यूज 2 शब्द आप बोल दीजिए, उसके बाद हम बाद में आएंगे सब कुछ. अभी जो आज तक अभी 5-6 जो कमांडो बताया, उसके बाद बाकी कमांडो ने बताएंगे. तो उसका निशांत का अभी इंडस्ट्री का जो पोजीशन है, इसका NISM 10A-10B का क्या जरूरत है, अब है कि नहीं, सब कुछ बताएंगे. और MFD का अगला दिन क्या करना चाहिए वो भी निशांत बताएंगे. तो मैडम, आप थोड़ा कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए, उसके बाद हम निशांत को बुला रहे हैं. Good evening, everybody. I will be very short and crisp in my discussion. So many things. Thank you all of you for all your praises.
And I would like to say that my one line, in a line, I would say, be and meek. That is what Swami Vivekananda had told, be and meek. Whatever you learned, please do implement it in your day-to-day life. And if you do well in your business, that would be the biggest trophy for me. And I would be cherishing on all that, because I know that I have friends, philosophers, guides, whatever you say, I have throughout all over the world, in every nook and corner, I am able to touch through all of you. So anywhere I go, I know that anybody will be anyone from this group, I will be able to contact. So each of your home is actually my home. So that's all. And thanks to each one of you for all the good words that you have said. And sincerely, I'm very happy to get myself to be appreciated. And it's my pleasure from the deep core of my heart. Thanks. I would say namaste to all of you. And happy Mahala. Happy Mahala. So we also recognize our commandos. After that, before Nishant, I asked to Nishant. Nishant, please. You. Yes, hi. Yes, Gautam. yes. Okay. Now I introduce you. Everybody know, but official introduction तो चाहिए ना. तो एक official introduction तो सबको देना पड़ता है. तो मेरा ख्याल से एक बार निशांत को बारे में एक दो शब्दों बोलने से मेरा ख्याल से सबका पता चल जाएगा. तो हम यहीं पे चैट बॉक्स से लिखते जाए कितना कितना बंदा लोग निशांत को पहचानता है. ये निशांत को भी एक बार जानकारी होना चाहिए. ये पैन इंडिया जो IFA फ्रेंड्स है, आपको कितना आदमी डायरेक्टली बात कर पाया कि देखा है. तो एक बार यस नो लिख दीजिए कौन सा चैट बॉक्स में, तो आपका पता चल जाएगा. यहीं पे जितना इंडस्ट्री का फ्रेंड है तो वो बताएंगे. प्लीज राइट इन चैट बॉक्स. हाँ, राजेश मिश्रा नो बोला. अच्छा, तो ये भी देखना चाहिए. और सबको एक मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं. निशान देख रहा है तो जी 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 देख लीजिए. ये भी एक एग्जाम चल रहा है आपका. ठीक है, कोई बात नहीं. नहीं ऐसा नहीं है. एक्चुअली ये भी क्या है ना, सब सुनते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट बात तो नहीं कर पाते हैं ना. हाँ, पर्सनली हम लोग मिल नहीं पाते, लेकिन एक न्यूज़ लेटर स्टोरीज के थ्रू हम लोग रोज शायद कांटेक्ट में आते हैं. यस. और काफी डिस्ट्रीब्यूटर्स से मैं टच में हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करने में. हाँ. कुछ नया सीखता हूँ मैं. एकदम. तो हम ठीक है, हो गया जो कुछ हुआ. तो निशांत के बारे में दो चार शब्द बोल रहे हैं, उसके बाद निशांत बताएंगे. Nishant, actually Nishant is an associate editor with Cafe Mutual and has played a big role in making Cafe Mutual the most dependable and complete content platform for the distribution community. He holds a master degree in economics honors and is a certified financial planner, CFP also, from FPSB India. And he loves to travel, read the make friends. Recently has co-authored 2 books, Making Money Through Mutual Funds and Turbocharge Your Business. 2 बुक का को-ऑथर है. तो ये जो से एक बार हाथ ताली देना चाहिए कि ये 2 ऑथर भी हम लोग के पास आ गया. तो थैंक यू सो मच निशांत. I think it's a pleasure for all of us. You are really so I just क्या बोले, एक आपको thank you so much.
I So think please take now platform is yours. Please you have heard our commandos बातों आप सुन लिया तो आपका कैसा लगा और अगला दिन क्या होना चाहिए थोड़ा बताइए तो सबके लिए अच्छा होगा. जी जी. So thank you so much Gautam Da and Sarbani ji for giving me such an wonderful opportunity. And I congratulate first of all the 12 commandos, Arunmay, Anshuk, Pankaj, Jyoti, Srirang, Anup, और I hope to बाद में आपको इसका ऑनर देना है, वो सर्टिफिकेशन है, तो आपका स्पीच के बाद उन लोग को सर्टिफिकेट आपको हैंडेड ओवर करना पड़ेगा डिजिटली. ठीक है? जी जी जी. ओके. सो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5-7 minutes of your time. So I remember कल गौतम दादा से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने एक अच्छी बात कही थी कि इंडिया में करोड़ों मेडिकल स्टोर्स हैं, बट डॉक्टर्स बहुत कम हैं, राइट? So in similar context, while there are many direct plan distributors like medical stores in India, but there is dearth of good financial advisors like you, right? So remember, medical stores may be opened and closed, but the need of a good financial advisor will only increase from here. So friends, I must say that every one of you should do NISM 10A and 10B examination, irrespective of the business model you want to follow. अगर आपको MFD भी रहना है या अगर आपको RIA बनना है तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको MFD बिजनेस में भी कंटिन्यू करना है तो ये कोर्स हम सभी के लिए मस्ट है, बिकॉज इनका कंटेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जो हमारे बिजनेस में काम आता है, राइट? So first of all, I would like to congratulate all of commandos for completing NISM 10A and 10B examination. So since you all have cleared the examination, one question must be in your mind. Should I go for RIA license or should I continue with the MFD business? So hence Gautam Dada has asked me to talk something about the future of distribution business. So before moving ahead, let us see how current distribution market looks like. So currently we have individual MFDs, we have national distributors, we have banks, we have RIAs, and finally direct platforms. But I can say that there is space for everyone to grow. So for instance, direct plan has been around since कब से गौतम दा 2012-13 से direct plan है. हाँ. Right. But since then everyone has grown. MFD भी ग्रो किया है, ND भी ग्रो किया, बैंक्स भी ग्रो किए हैं, तो इंडिया इतना बड़ा मार्केट है कि ये सभी के लिए अच्छा है, राइट? बट ओनली डिफरेंस बिटवीन देन एंड नाउ इज कंपटीशन. Certainly the competition has increased, but remember competition makes you competitive, right? कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है अगर competition अच्छा तगड़ा रहता है, right? So while there is no doubt that direct plan platforms have been growing compared to other distribution channel, but sooner or later consolidation will happen. So in future, there is high chance that direct plan platform may look at charging fee or may become hybrid. So we have seen this happening in the global markets. So some examples are Betterment and Wealthfront, right? So let us see what would happen, what would be the future of distribution business. So as per our analysis, future will be of MFDs clearly. अगर आप MFD business follow करना चाहते हैं तो आप clearly कीजिए. If you want to cater to retail investors, अगर आपका focus clear है कि आपको सिर्फ retail investors को cater करना है और ज़्यादा number of clients cater करना है, तो आप RIA license मत लीजिए. It does not make sense and it will only increase your cost of compliance. Second lucrative model for future is hybrid model, right? Hybrid model, if you want to cater to HNIs, अगर आप wealthy client segment को reach out करना चाहते हैं, तो non-individual RIA model is indeed very lucrative, right? But it comes with cost. Individual के लिए बहुत महंगा पड़ रहा है non-individual RIA license लेना, because there are many requirements like 50 lakh net worth and other things. So because of this, MFDs, individual MFDs should look at tying up with infrastructure companies like NDs to offer these services. Or another way is to make synergies with other RIAs and MFDs to offer such services, right? So in future, according to me, 5 key mantra will help you to grow your business in future.
So these are offering value-added services, having professional setup, business succession, make investing experience seamless and easier for your client, and staying in constant touch with client. So let us look at it one by one. So offering value-added services. So you can simply add value to your services by offering multiple products or services. So friends, I do not think any financial product is competition to MFDs. अगर P2P lending अगर market में है तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है. दिस इज नॉट द कंपटीशन. अगर बिटकॉइन भी है तो ये भी अपॉर्चुनिटी है. हमारे लिए हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी है. तो हमें हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट कोशिश करना चाहिए कि हम लोग अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग में इंक्लूड कर पाए. ऐसे ही वी शुड लुक एट ऑफरिंग मल्टीपल सर्विसेज लाइक टैक्स प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग एंड सो ऑन. So I give you a simple example. So would you like going to different restaurant for starters, for main course, for dessert? No, right? In the same way, we all like to deal with single person for everything. If you do not have expertise in tax planning or estate planning, so you can have tie-ups. Also, please don't look to make profit from these tie-ups, as you do not have control over the quality of work because you're outsourcing this. Okay? It is better to facilitate such services free of cost and have clear terms with your clients. It is just adding value to your offering. That's it. Remember, you're competing with big brands today. So it is essential to create happy clients to attract more referrals. My second point is professional setup. जैसा मैंने पहले बोला था कि आपका कंपटीशन अब बड़े ब्रांड्स के साथ है. So it's time to set up professionally. By professional setup, I mean conducting business seriously. So for example, don't leave your business to fate or chance. आप ये मत सोचिए कि आपका business अपने आप grow करेगा. You should have a game plan and have a control over your business. आपको long term सोचने की जरूरत है और you should never stop learning. आप लोग हमेशा learning curve अपना continuous रखिए. Another point I would like to make is do not sell any products. Sell solutions to client. Client का मोटा मोटा कितना क्या need होता है? Basically, they want to achieve medium, short and long-term goals in life. उनको wealth preserve करना होता है. उनको शायद regular income generate करना होता है. तो आप कोशिश कीजिए कि आप basket अपना खुद का तैयार कीजिए. For example, Gautam's basket to preserve wealth, right? Gautam's basket to generate regular income. तो आप लोग ऐसे solution दीजिए clients को, right? And if any of one of you is operating from home, so I request you to have an office, hire people, maintain a calendar, थोड़ा organize setup कर लीजिए, right? यही future है. Another thing I would like to point out is business succession. So today many people like to know what happened to their assets if anything happens to you. In fact, post-COVID, many people have realized and are very concerned about future uncertainties. So from very first day, communicate your succession plans with clients. Ideally, your family members can succeed your business, but family में अगर कोई person interested नहीं है, so you should look at tying up with like-minded people or trustworthy distributors or employees. Another point is making investing experience seamless for them. आज लोगों का expectation बहुत बढ़ चुका है. People want everything on their fingertips. So you should leverage technology to offer seamless investing experience. So apart from offering online transaction facility, you should offer easy solutions like single click account statement summary, or you may draft referral messages for them. जैसे कि हम लोग आज Google Pay, Phone Pay use करते हैं, तो you can एक ही click से you can refer Google Pay और Phone Pay to someone. ऐसे ही distributors को भी सोचना है कि एक ही click से client कैसे आपको refer कर सकता है, right? Before ending, my final point is staying in constant touch with clients. So I would not say you to write an article or share newsletter with your clients, because ये बहुत time consuming होगा और आपका बहुत मतलब और आपको ये भी नहीं मालूम कि लोग आपका newsletter पढ़ रहे हैं कि नहीं और क्या वो share हो रहा है कि नहीं. So what you can simply do is बातें करें. You can simply call your clients once a month. People value personal interaction. It can go a long way in strengthening your relationship with them. So that's it from my side. Thank you so much, each one of you, for being such a lovely audience. Over to you, Mr. Gautam Da. Thank you, Nishan.
वो आप लोग जो किया था वो परफेक्ट प्लानर, थोड़ा 2 शब्द उसमें बताइए, जो पैन इंडिया पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, तो परफेक्ट प्लानर्स हम लोग का केस स्टडी काफी इंटरेस्टिंग था। हम लोग ने रियल लाइफ केस स्टडी लिया था। उसमें हमने कुछ बताया नहीं था कि आपका एक क्लाइंट थी जिनका हस्बैंड एक्सपायर हो गया था ड्यू टू कोविड, और उनको ये उनकी एक बेटी थी और उनकी एक मदर इन लॉ थी, और उनको उनकी मदर इन लॉ का के लिए कुछ कॉर्पस जमा करना था, बेटी का एजुकेशन और वेडिंग के लिए, और अपना जो रेगुलर इनकम है वो जनरेट करना था। और हमने ऐसा कुछ फिगर नहीं दिया, क्योंकि जनरली क्लाइंट्स को मालूम नहीं होता कि उनको वेडिंग के लिए कितना पैसा चाहिए, एजुकेशन के लिए कितना पैसा चाहिए, राइट। इट इज आई थिंक ये एडवाइजर्स लोगों को समझने की जरूरत है कि क्लाइंट्स जनरली ऐसे रॉ ही आते हैं और हमें उन्हें तराशना है, राइट। तो इसमें हम लोग को शायद 200 से ज्यादा पार्टिसिपेशन है। फिर हम लोग ने वेरियस पैरामीटर्स बनाया और शॉर्टलिस्ट किया, फिर उसमें से एक विनर्स अपने हम लोगों ने सिलेक्ट किया था। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी क्वालिटी के रिस्पॉन्सेज आए थे। बहुत टाइम लगा था हम लोग को सिलेक्ट करने में, और बहुत अच्छा लगा देख के कि डिस्ट्रीब्यूटर्स इतना अच्छा मेहनत करते हैं, इतने अच्छे से प्लान करते हैं। बहुत अच्छा लगा था देख के। कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानर, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल, एक्चुअली फैंटास्टिक था वो। एक्चुअली ये चाहिए, ये अब फिर दोबारा ना एक बार दीजिए, तो हम लोग जितना बंदा लोग NISM 10 भी कर रहा है, तो ये लोग को पता चल जाएगा कैसे ये क्या करना है, प्रैक्टिकल जो करना है। ऐसा केस स्टडी देने से पता चल जाएगा जो क्लाइंट के साथ क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम हैप्पी टू शेयर द केस स्टडी। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप बाकी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एकदम सही करेंगे, क्योंकि नहीं तो ये जो लर्निंग है इसके इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करेंगे उसको पता नहीं चलेगा इसका फायदा क्या है। राइट राइट राइट। तो इसलिए चाहिए हम लोग को सबको। तो ये हमारा पास आउट जो 1-2 कमांडर है, वो लोग का थोड़ा 1 मिनट का बात सुन लेता है, उसके बाद वो लोग को ऑनर करके हम लोग इसका जो आगे बढ़ेंगे वो कर लेंगे। हम लोग करीब 9 बजे हम लोग खत्म करें, 8:40 है, 20 मिनट में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। श्योर श्योर। हाँ, सो देन आई आस्क टू नरेंद्र जी, जिन्होंने बहुत अच्छा से क्लियर कर लिया। नरेंद्र जी, बिपिन जी, और कौन है, ये सुविधा है। तो पहले हम नरेंद्र जी को बुला रहा है, प्लीज नरेंद्र जी। और राजशेखर जी भी है। हेलो राजशेखर जी, है इधर? Yes, yes, I'm. Yes, please open your video. Okay. Then Nishant, this is our younger our in our batch almost सबसे younger बंदा है। देख लीजिए, इंजीनियर है। Great to know. Yeah, no, thank you. And I know Nishant because I read Cafe Mutual regularly, and in fact I had even once contacted him through email also. It is a great help. So it's nice to see you here, Nishant. Thank you so much. And coming to this training, for me, I'm only in MFD as MFD. It's only 3 years because prior to that I was doing my engineering role. So from that perspective, what Gautam does say, I'm the youngest, so I'm the youngest. I realized actually it is Gautam Das initiative and encouragement that that made me to think that I should take this exam. I was thinking about it because, as Nishant pointed out, in these 3 years, I realized that we are not just giving products, but we are giving solutions. So, expanding our reach of knowledge and the way we think about the problem and the kind of solutions that we can work out is a necessity. And when he prompted me, that is when I said, okay, I will do it. And I just decided to do XA first. But then he doesn't give up that easily. So he continued to encourage and motivate me so much that I should take XP too. So for me, Excel, mathematics, these were not challenge. I mean, pretty much my life was in that. But for me, the bigger challenge was this 500-page syllabus to be covered in 20 days. And I wasn't sure. But then this training showed the way on how to focus, where to focus, and how to spread from the focus area to rest of the topics. So it gives a very good top view. And then we know really where we are. We find the interconnection between the chapters.
then we get our understanding better, and then we'll be able to complete all the 500 pages quickly after that. If we had started from page 1, probably it was not at all possible to do it in that short period of time. The two things this training did, the first one was this, giving a very good overview on where to focus, how to focus, and how to spread. And I thank Sarbani ma'am for that very much. It was tireless efforts, as Arun Mai said, 4 hours a day, and focused, very focused. The second thing it did was this group activity, because we all came from different backgrounds, everybody asking questions from their own angles, and that really accelerated our learning process. So the more and more understanding, the faster and faster was the study, and that's how it was possible for me to do both the exams within the span of 20 days. So for facilitating the entire thing, I'm extremely thankful to Gautam Da for making this happen and being a part of my success here. So thanks a lot to ICAA, Gautam Da, and Sarbani ma'am for doing this great work. Thank you so much. You also proved that if you want to clear the exam, he or she can do both in 20 days also. This is the fact. Though 2 exam, 10, it is another strategy was there. Your NISM 2 is fast. After that, NISM 1. The tough one is fast. Easiest one is last. The exam way. So the really there, you all people are real hero. I salute to you. You people take the challenges and जैसे challenge लिया वैसे भी करके दिखाया, जे हाँ हो सकता है, करके देखा. Thank you so much for such kind Thank words. you. Yes, then Narendra ji, please share your Narendra ji. Hello. Nishant, this group is Pan-India group, and every state is there. Great. Every state, Pan-India. ये हमारा जो कमांडो बन गया, ये कमांडो लोग एक माने एक क्या बताए, माने हम लोग ये डिजिटली संभव हुआ. और एक बात, चैलेंज की बात सबके लिए होना चाहिए. हम लोग सोचा था कभी फिजिकल से डिजिटल मोड में नहीं होगा बिजनेस, फिजिकल मोड में वो आदमी लोग नहीं करेंगे, लेकिन पैंडेमिक सबको सिखा दिया डिजिटल कैसे होता है. तो डिजिटल में तो ये अगला दिन ये डिजिटल का नाते से डायरेक्ट बिजनेस ऑलरेडी 56-7% हो गया. मेरा ख्याल से अगला 2 साल में ये 80% कवर कर जाएगा, 90% डायरेक्ट बिजनेस ही होगा. तो ये आप लोग जो बताया ना, जो अगला दिन एडवाइजरी के लिए इन्वेस्टमेंट आदमी लोग खुद करेंगे, लेकिन वो एडवाइजर ढूंढेंगे, वो दिन आने वाला है. बिल्कुल. और गौतम दा, एक बात मेरे को लगता है कि फिजिकल, जैसे हम लोग डिजिटल तो बोल रहे हैं, लेकिन फिजिकल का भी इम्पोर्टेंस बहुत हद तक बहुत ज्यादा है, क्योंकि एडवाइजर्स लोगों का एज इसलिए है क्योंकि वो लोग फिजिकली क्लाइंट से मिल पाते हैं, राइट. इसको तो कोई आप डिनाई नहीं कर सकता. कभी भी मैं मशीन से बात कर रहा हूँ, मैं कभी टैक्सी बुक करता हूँ, ओला से आता नहीं, फिर मैं चैट बोर्ड से बात करता हूँ, आई गेट इरिटेटेड. आप समझ रहे हैं, आई एंड अप टेकिंग रिक्शा देन. तो ये नॉर्मल बिहेवियर है इंसान का. इंसान को फिजिकल चीजें पसंद आती है. एग्जैक्टली, वही आदत है ना, वही तो देख के आया है, थोड़ा टच करना, कुछ देखना. तो जो ये है, तो इसलिए वो तो सबको चाहिए. तो और क्लाइंट भी आपको हर किस्म के मिलेंगे, जो इन्वेस्टर्स डिजिटल, वो तो है ही कंफर्टेबल है. कुछ क्लाइंट्स आज के जमाने में मैंने देखा है, बहुत लोगों से सुना है कि आजकल क्लाइंट्स जो है वो ऑनलाइन को मना कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्रॉडलेंट, इंक्रीज इन फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस. तो सबको आजकल फिजिकल भी चाहिए. तो हम लोग को इसके लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए कि फिजिकल क्लाइंट्स को भी हम लोग को कैसे डील करना है. तो ये अनदर बंदा है जो ये बिपिन है, देखिए ये भी ऐसे करके देखिए, ये हमारा बैच के फर्स्ट क्रैकर है.
वो जो पहले जो हम लोग को फ्लैग होस्टिंग किया एवरेस्ट में, ये बिपिन जी है, हमारा फर्स्ट जो एग्जाम क्लियर करके देखा है, मिस्टर बिपिन अग्रवाल। निशांत है इधर, निशांत को तो आप जानते ही है बिपिन जी, कैफे म्यूचुअल का। जी 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 सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ये हेलो निशांत जी। तो बिपिन जी कैसे लगा, कैसे किया है आप? ये लोग जो देख रहे हैं ना निशांत, हार्ड बंदा ये ऐसे राजशेखर जी, वो भी पहले 10 भी क्लियर किया, उसके बाद 10 ए क्लियर किया। ये अमेजिंग, बहुत अमेजिंग थिंग है, पहले डिफिकल्ट फिर इजी। या हम लोग वही करके देखा है, जब पहले आप डिफिकल्ट कर लो तो इजी तो हो जाएगा, वो कोई निशांत जी, बड़ा बात नहीं है। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मतलब यूज्ड टू थिंक कि CFP, NASM, 10A, 10B करने हैं, बट आप यकीन मानो इनका सिलेबस और इनका एग्जाम पैटर्न का हमें ABC भी नहीं पता था। लास्ट ईयर गौतम जी ने जब ये कोर्स शुरू किया था तो मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया, बट मुझे नहीं पता अनफॉर्चुनेटली मैं कैसे छूट गया, मैंने वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया। तो इस बार फिर जब मुझे गौतम जी का मैसेज आया तो मैंने कहा यार अभी ये छोड़ना नहीं है इस चीज को ना। तो ये सब जो भी, अगर आज हम जो भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा अगर क्रेडिट किसी को जाता है वो वन एंड ओनली गौतम जी हैं। तो इन्होंने हमें जब 10A और 10B दोनों, 10A ज्वाइन किया इनिशियली तो क्लास वाज गोइंग ऑन स्मूथली, तो सडनली बीच में 10B का इन्होंने हमें वो दे दिया कि आपकी जी ये शॉर्टकट क्लास क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्रैश कोर्स हमें ये वो क्लास दे दी उन्होंने। तो आप मानो कि अच्छा, इन्होंने हमें बताया कि आपने ना 2 बार एग्जाम फिल करना है, एक फिल करना आप फर्स्ट वीक में और एक करना लास्ट वीक में, सो दैट आपका वो क्लियर हो जाए। अगर अनफॉर्चुनेटली किसी का क्लियर नहीं भी हो पाया तो वो सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो मैंने 10A का ऐसे ही फिल कर दिया था। तो 10B का भी जब मैंने फॉर्म 10B का मेरा था एग्जाम आई थिंक 21st को, 21st, दिस इज फर्स्ट टाइम। हाँ, यस यस। और 10A मैंने फिल किया था 28th को। तो अच्छा, उसमें हमें क्या हुआ, जो हमें सरबनी मैम इन्होंने हमें जिनके साथ हमारा मेल मिलाप करवाया, तो मैम ने जो हमें ट्रेनिंग दी, मतलब आप सच्ची मानो वो वाकई कमांडो ट्रेनिंग थी जो इन्होंने नाम दी है। तो उसमें टू द पॉइंट, जैसे पेपर लीक नहीं होता जी, वैसे इन्होंने हमें तैयारी करवाई है कि ये चीजें आनी ही आनी है जी। मतलब वाकई वो चीजें सब आई, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं थी जो इन्होंने बोली हो और हमें ना आई हो। 10-12 केस स्टडीज करी, उनमें से हमें 8 केस स्टडी उसी में से आई, आनी ही आनी थी। तो वो तो मेरे तो बहुत अच्छे स्कोर भी बहुत अच्छे आए, जितना मैंने तैयारी की उससे कहीं ज्यादा मेरे नंबर भी अच्छे आ गए। तो मेरा एग्जाम 10A हाई स्कोरर है इन आवर बैच, हाई स्कोरर है 81.4%। जी 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 जी। तो अभी वो भी मैंने आधी अधूरी तैयारी करी थी, अगर जो मैम ने हमें बताया अगर वो करता फिर तो मैं शायद 100 में से 100 ले आता, जो मैम ने बताया अगर वो किया जाता तो। बस स्टूडेंट्स है जी, आपको पता ही है, इतने कम्मे तो होते ही हैं सारे तो अल्टीमेटली जब 21st को क्लियर हो गया तो मेरा 10A शेड्यूल था 28th को। मैंने कहा छोड़ो यार 28 बहुत दूर है, पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो मैंने गौतम जी से बात करी, गौतम जी मैं यार एग्जाम दूसरा फिल करने लगा हूँ 23rd को ही। कहते गो अहेड, कोई इशू नहीं है, मुझे पता है आप कर लोगे। तो इन्होंने कुछ जो भी नोट्स वगैरह प्रोवाइड करी, जो मेरी इनसे बातचीत हुई, और उधर जो सर ने हमें कोचिंग दी थी वो भी मार्वलस कोचिंग थी, बहुत एक्सीलेंट कोचिंग थी हमारी। तो उसके बाद 23rd को मेरा फिर साथ ही 10A भी क्लियर हो गया, सेम स्कोर के साथ, 82 के साथ का स्कोर था मेरा। मतलब उसका सारा क्रेडिट मैं अगर आज देना चाहता हूँ तो वो गौतम जी और हमारे दोनों मेंटर्स को है, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी। हमारे इतने अच्छे सारे फ्रेंड्स इतने साथ बन गए, जिनके साथ अभी हमारा एक ग्रुप, बहुत अच्छा ग्रुप बन गया है ना। तो मतलब ये सारे इसी को क्रेडिट जाता है जी। ये एक्चुअली ये ना, जो पहला बैट्समैन जो सेंचुरी कर लेता है ना, तो सेकंड जो बैट्समैन, थर्ड बैट्समैन, वो लोग को तो ऐसा ही हो गया। भले ये तो हमारा पहला बैट्समैन ही सेंचुरी करके दिखाया, तो इसलिए हम लोग को सक्सेस रेशियो भी अच्छा है, सब कुछ है। तो ये कोई सोच नहीं सका कि 5 दिन का ट्रेनिंग में NASM का तरफ 10B का ये कैसे क्लियर हो पाए। दिस इज अमेजिंग, रियली वी आर फीलिंग we salute to all the commandos because they are accepting the challenges.
आज से I- पहले मैंने सिर्फ 10B के बारे में सुना था कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स है, बट मैंने उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं किया था, मेरे पास उसके कोई नोट्स नहीं थे, मुझे स्टडी मटेरियल नहीं पता था, उसका सिलेबस एग्जाम पैटर्न कुछ भी नहीं पता था। और आज मैं अगर कह रहा हूँ कि मेरा 10B क्लियर है, तो वो गौतम जी और हमारे दोनों मेंटर्स 10A 10B दोनों क्लियर हैं, वो सब इन्हीं के कारण है जी। और मतलब कि अच्छा ही है जी, मतलब उसके बाद हमारा जैसे बॉन्डिंग होगी हमारे फ्रेंड्स के साथ, मुझे मेरे एग्जाम क्लियर करने के बाद बहुत सारे विशेस दिए सभी फ्रेंड्स ने, है ना। उसके बाद कुछ फ्रेंड्स का फोन भी आया गाइडेंस के लिए कि अब कैसे करना है उसको, एग्जाम में कैसे है, क्या पेपर आया था। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सभी का मोराल बूस्ट करूं कि भाई आप एग्जाम में बैठो, और आई एम श्योर कि अगर आप जो आपको पढ़ाया गया है उसका अगर 50% भी कर लोगे ना, तो आप मोर देन एक्सपेक्टेड मार्क्स लेके आओगे। आई थिंक सभी का अच्छा गया होगा। ग्रेट। तो ये निशन जी, हम लोग को एक स्ट्रेटेजी था, उन लोग सबको चक्कर किया कि ये क्यों कर रहे हैं। हम लोग सबको ना 2-2 डेट बुक किया था एग्जाम के लिए। बोला जी अरे 2-2 डेट क्यों बुक कर रहे हैं, हम एक डेट आप कोई कारण से आप एग्जाम सेंटर में नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा, कोई एक नंबर से आपको चला जाएगा, तो क्योंकि ओल्ड सिलेबस तो चला जाएगा तो दोबारा सीट नहीं बुक होगा, तो आपका हो जाएगा। तो ये हम लोग जो स्ट्रेटेजी था, तो हम लोग के ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत काम में आएगा। अगला दिन हम लोग का स्ट्रेटेजी 100% सक्सेस हुआ। प्लान बी आपके पास रेडी था बेसिकली। हाँ एकदम पूरा जो सर बोला ये जो हम लोग प्लान, मेंटली सबको ऐसा है, जो किलर्स का जी बताया ना, हम लोग इसका मेंटली इतना रीच कर दिया, वो जहां पे हो जाके वो एग्जाम देंगे। नहीं तो वो एक स्टेट छोड़ के दूसरा स्टेट जाके एग्जाम देके आया, 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर ट्रैवल करके एग्जाम दिया NI-70 को। कोई सोच नहीं सकता है सर। श्रीरंग जी ने ना। हाँ ग्रेट ग्रेट। जैसे आपने बताया कि प्लान ए और प्लान बी रेडी थे, तो वो प्लान जितने भी प्लान हमने बनाए वो सब रेडी करने वाले गौतम जी थे। ग्रेट। तो हमारे यहाँ पे NISM एग्जाम में सीट्स भी नहीं थी, NSCIT में सीट्स वगैरह भी नहीं थी। 100% इनके एफर्ट से जिस कारण हम सारे लोग एग्जाम दे पाए हैं। तो ये सभी की कॉमन प्रॉब्लम थी। इन्होंने चलाई है, हाँ जी, चाणक्य नीति इन्होंने ही चलाई है, चाणक्य बिल्कुल ठीक नीति है। इन्होंने ही चलाई थी, हम तो सिर्फ हथियार चलाने वाले थे। जी जी बिल्कुल, इन्होंने हमें आगे खड़ा कर दिया हथियार पकड़ा के, आप थोड़ा सा चला लो बस, बाकी सब यही थे करने वाले। माने बहुत सारा लोकेशन में ना सीट नहीं था, तो हम NISM को GM जो है नितिन टिक्के सर को बहुत रिक्वेस्ट करके उसका सीट ओपन कराया कि यही के वो एग्जाम देना है, आपको तो जानते हैं इसके बाद सिलेबस चेंज हो रहा है, तो ये लोग को थोड़ा मदद कीजिए। तो मेरा बात सुन लिया, वो काट दिया। तो इसलिए ये जो जितना जो सक्सेस हो रहा है वही और एक कारण है जिसमें हम लोग कर पाया, नहीं तो एग्जाम का वो सीट ही नहीं था। तो हम लोग उसको ओपन कर पूरा इंडिया में हर लोकेशन पे, ऐसा नहीं है कि ओनली दिल्ली नहीं है। और ये बिपिन जी कहाँ है जी, पूछिए एक बार कहाँ से वो है, क्या कितना रिमोट एरिया में रहता है? जी जी, होशियारपुर है पंजाब में। जी हाँ जी हाँ। हाँ वहां से हूँ मैं, मतलब ये हमारा एक हिमाचल जैसा लगता है, छोटा सा एक टाउन है, कोई बहुत बड़ा टाउन नहीं है। तो सब हो गया जी बस। बहुत अच्छी बात है, बहुत इंस्पिरेशनल था ये तो। माने ये हम लोग जो किया है इंस्टेंट है, ये आपको आपका ये आप तो एडिटर है, ये कहानी आप लिखने से पता चलेगा जो IFA लोग ऐसा कर सकते हैं, वो लोग चाहे तो। बिल्कुल। माने ये पूरा इंडिया का जो गांव का बंदा लोग ऐसा एग्जाम क्लियर कराया, तो ये अमेजिंग। तो देन आई आस्क्ड टू मिस्टर सुबीर बसु, ही आल्सो फैंटास्टिक, चार्टर अकाउंटेंट भी है, वो भी क्लियर किया, लेकिन वो उसका वो देखिए अभी तबीयत थोड़ा खराब है। सुबीर दा प्लीज दो शब्द बोलिए। हेलो सुबीर बसु, देख रहा है कि नहीं सुबीर दा को? ना, मेरा ख्याल से उसका नहीं देख पा रहा। तो ये नरेंद्र जी भी कहाँ गया? नरेंद्र जी वो भी नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो मैडम हेलो, तो हम लोग ये लोग का ऑनर दे निशांत के साथ, उसके बाद हम लोग का जो अगला जो कार्यक्रम है वो बताएंगे। पहले तो ये लोग को
एक बार ऑनर देना है सबका, Exactly. That's the main objective. मेन ऑब्जेक्ट। Everybody should. यस यस, सो आई That एम should be. शेयरिंग एक एक करके सबको शेयर कर रहा है। तो निशान जी आपको डिजिटली क्या करे, अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिजिकली प्रोग्राम करने का जब मौका मिलेगा हम जी, लोग जरूर जी। करेंगे, बिल्कुल आपको लेके ही करेंगे। तो लेकिन आपका, मेरा ख्याल से आपका प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल। पैन इंडिया जो है वो मुंबई से ही होगा, आप जब करेंगे वहीं पे करना पड़ेगा तो अब ये हो पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो ये मुश्किल है। पैन इंडिया लोग का कैसे हम टैकल करेंगे, कलकत्ता आने बोले तो बोल देंगे ये तो आपका एरिया क्यों बुला रहे तो वो नहीं बताएंगे ना। सर, आप बुलाने वाले बोलो, हम आ जाएंगे, टिकट भेज टिकट भेज देना बस। ओए बात हुई क्लास दे दिए, अच्छा दे दिया तो ठीक है। तो निशान जी, हमारी मुलाकात तो मुंबई में 2020 फेब में हुई थी। जी जी जी, जस्ट बिफोर कोविड। हाँ, जस्ट बिफोर कोविड। तो हमें याद आ रही है कि कब अभी हो जाएगा फिजिकल कैफे म्यूचुअल का इवेंट, कब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए इस साल, देखिए अब। यस यस, करो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। और प्रेम जी को हमारा नमस्कार कहना। बिल्कुल बिल्कुल प्रेम साहब को। बिल्कुल। यस। स्क्रीन देख पा रहा है? हेलो निशान जी, आ गया हाँ, स्क्रीन पे। ये मिस्टर अंशुक तिवारी, ये हमारा माने क्या बात है, ये जो कमांडो जो दोनों ऑलरेडी कर चुका। निशान जी आप एक शब्द में बोल दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस अंशुक जी, बहुत अच्छा लगा। आप आई गेस आप मध्य प्रदेश से हैं, राइट? तो वहां से भी आपने बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर किया है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट मिस्टर अनूप मुखर्जी, अनूप मुखर्जी, दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली। हाँ। अच्छा, दिल्ली। ग्रेट अनूप जी, आप शायद अभी स्क्रीन पे आए थे, आपका मेरे को बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगा था। ओह, थैंक यू वेरी मच। वो डिजिटल काफी, है। स्टार्ट अर्ली और ये सब कुछ शायद आपने पीछे हाँ। था, मेरा बहुत ध्यान गया। काफी अच्छा लगा, और एडवाइजर्स को ये सब नया चीज करके देखते हुए बहुत खुशी होती है कि जरूरी है ये सब, मतलब काफी अच्छा लगता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके अनूप जी। थैंक यू, सेम टू यू सर। वी विल कनेक्ट समटाइम। श्योर, डेफिनेटली। आपका डिजिटल जो कैफे म्यूचुअल का प्रोग्राम हुआ था वो मैंने अटेंड किया था। जी जी। अरे इस पर फिजिकल जॉब होगा ना अनूप दा, तो हम लोग कैफे, हम तो हर कैफे का प्रोग्राम में जाता है मुंबई में, तो वहीं पे हम लोग जितना कमांड है सबको वहीं पे इकट्ठा होंगे। ये निशांत का साथ वो उनका प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू निशांत। थैंक यू सो। हाँ, मिस्टर अरुण मैसूर, हाय अरुणमय जी। सो बहुत अच्छा लगा देख के कि आपने माने एक्यूरेसी इज द वेरी एक्यूरेसी। यस आउट ऑफ 53 or 52 ही क्लियर्ड द। आपने, हाँ, बहुत एक्यूरेटली आपने सही दिया सभी। हम लोग का ये स्ट्रेटेजी और एक था कि एक्यूरेसी। जी जी। एक से बढ़कर एक हमारा जो कमांडो था, एक से बढ़कर, दे आर फॉलो द ऑल द रूल्स एंड अचीव द गोल। जी, तो ये आपके ग्रुप के राहुल द्रविड़ हैं। हाय है। थैंक यू निशांत जी, होप टू मीट यू समवेयर। नहीं, मुंबई जो कैफे का जो प्रोग्राम होगा ना बॉस, हम लोग जाएंगे। हम तो हर साल जाते ही है, तो लेके जाएंगे, चिंता मत कीजिए, हम लोग को वहीं पे मुलाकात होगा। वो लोग अच्छा खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ कराते हैं, अच्छा सब कुछ। और पैन इंडिया से बहुत अच्छे लेक्चर्स होते हैं। हाँ, एकदम पूरा वो नॉलेज बहुत बढ़ता है। हाँ, ये इतना अच्छा प्रोग्राम लास्ट टाइम गौतम दा, लास्ट टाइम उन्होंने अंजलि भागवत को बुलाया था। हाँ, शार्प शूटर। वो सब है वो कैसा ट्रेनिंग होता है, क्या होता है, कैसा। और एक बताने वाला था, ये ट्रेनिंग में हमकी साइकोलॉजी इतनी प्रिपेयर कर दी ने गौतम दा ने,
इसीलिए मैंने उनको कमांडर इन चीफ बोल रहे हैं हम उनको अभी। निशान जी, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत ही इज अ अच्छा। कमांडर इन चीफ। हाँ एकदम सही है। तो नेक्स्ट और एक बहुत गौतम दा का हेड्स ऑफ टू गौतम दा, उन्होंने दिखाया, वो खुद एग्जाम पे गए, उन्होंने किसको भी नहीं बोला और खुद एग्जाम पे गए, उनको बहुत कंस्टेंट आ गया, वो एग्जाम सेंटर पर तक पहुंचने के लिए आधा घंटा लेट हुआ, फिर भी क्लियर हुए वो। नहीं, हम लोग जो प्रिकॉशन बोला था एग्जाम का पहले क्या क्या होने वाला है, वो हम लोग का पूरा टीम का साथ हो गया। स्क्रीन बंद हो गया, उसका बारिश होके वही तक नहीं पहुंच पाए। स्क्रीन का प्रॉब्लम हो गया मेरे साथ, जितना सब हो प्रॉब्लम गया। था, अच्छा, माने इंटरनल से एक्सटर्नल बहुत प्रॉब्लम था एग्जाम। गौतम दा बोल रहे ये एग्जाम इज अ लाइफ एक्सपीरियंस, नॉट ओनली एग्जाम एकेडमिक और व्हाटएवर प्रोफेशनल, इट्स अ लाइफ एग्जाम। हाँ, यस यस अनुदा प्लीज। ये आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, आप हमें सावधान करते रहेंगे, वो आप ही के पास आके हाँ वो तो आ गया, वो तो आ गया। तो हाँ, मैंने इस उम्र में हमको 1 किलोमीटर दौड़ के एग्जाम हॉल में जाना पड़ा। 1 किलोमीटर, ये टाटा सेंटर से कैमक स्ट्रीट में, कि पूरा रोड जाम है, तो व्हीकल तो नहीं चल रहा है, हमको उसका उतर के 4 बजे गया, 4:30 बजे से मेरा था, वो 4:30 बजे तक पहुंच पाया। आधा घंटा। हम सबका प्रॉब्लम अपने ऊपर ले लिया। हाँ तो वो तो है। नहीं, जो मैंने जो बोला है वो भी मेरा साथ में टेस्ट हो गया। শিক্ষিত বন্ধু হাত থেকে শিক্ষিত বন্ধু বলে একটা কথা আছে জানো কি? আমার সত্য ভালো বলছো তো? আমার বউ হচ্ছে অশিক্ষিত বন্ধু। कौन बोल रहा है? তুমি ফর্ম ফিল আপটা কি করছো সেইটার উপরই তো টাকাটা আসবে। अरे की আমাকে বিশ্বাস করে না, রেনুকার জায়গা তো বেনুকা করে বসে থাকতে পারো। রেশন কার্ড এসেছে তো বেনুকা। अरे कौन बोल रहे हैं? अरे अजय मुखोपाध्याय। अजय मुखोपाध्याय कहाँ है? তুমি করে চালটা একটু মিডল প্রতি মাসেই চাল দেয়, একটা চাল নরমাল দিয়ে দিয়েছে আর টাকা দিয়ে নেমে বসে পছন্দ করে। Okay. This is Jyoti Panda. Yes. सो सबसे ज्यादा लाइफ में मेहनत विमेन ही करती है, क्योंकि घर भी संभालती है, हम सबको भी संभालती है हमारे घर में और इसके साथ साथ पढ़ाई करना और उसमें अच्छे नंबर स्कोर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ज्योति, यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन टू ऑल द एमएफडी कम्युनिटी एंड ऑल द पीपल। She also know the Vedic math also. अच्छा, ओके, ग्रेट। उसका एक सेशन हम लोग सबका साथ कराएंगे, कितना आसान से मैथ बन सकते हैं। Yes sir, definitely sir, I am always there for you sir. ज्योति जी, आपका वो जो स्क्रीन है ना, कैलेंड क्यूब्स, तो मैंने आपकी साइट ढूंढी, तो आप रूबिक क्यूब सिखाती है, ऐसा समझ गए हम। Yes sir, I can solve 13 types of Rubik's cube. हाँ, वहाँ पे लिखा है, तो मैंने मेरे बेटे को बोला है कि ये आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देती है? जी, हमारा ऑनलाइन वैदिक मैथ्स का और रूबिक्स क्यूब दोनों का ट्रेनिंग है हमारा। ग्रेट। और ट्रेनर ऑफ द ट्रेनर हो जाएगा। वैदिक मैथ्स कितना यूटिलाइज किया हमारे एग्जाम? हाँ, वो करेंगे। वैदिक मैथ्स सर इस एग्जाम में तो यूटिलाइज नहीं हुआ सर, बट ये है कि आप ना बहुत नंबर फ्रेंडली हो जाते हो वैदिक मैथ्स करने के बाद। गौतम दा, ज्योति जी का एक क्लास रखी है हमारे यहाँ, एक ट्रेनिंग कोर्स रखी है हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच ज्योति जी। नेक्स्ट आप ही आ गया, आपका मिस्टर सिरंग, जो एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाना पड़ा एग्जाम देने के लिए। ये अजूब है, लेकिन जो वही एक ही प्रॉब्लम मुंबई में बहुत सारा आईएफए का हुआ था 10A के लिए, वो लोग ये नहीं ले पाया क्योंकि वो लोग कमांडर ट्रेनिंग में नहीं था, नहीं तो वो लोग भी कर पाता था, वो भी कर पाता। उनका माइंडसेट इतना नहीं था, हम लोग जैसे माइंडसेट करा दिया जो आपने पूरा साइकोलॉजिकल माइंडसेट किया था। मैंने वो फोन जब आया ना, ये NSCIT बंदे का, मैंने इमीडिएटली उनको 10 सेकंड में कहा दे, यस आई विल डू इट, ओनली मुझे एक काम करिए, मुझे एग्जाम देनी है, रिफंड मत करिए। ये सबसे बड़ा लेसन है हमारा बैच में, सबसे बड़ा है।
और वो क्या है नहीं, इट्स ड्यू टू यू गौतम दा कि आपको देना है, करना है। और सरबानी मैम ने बोला था मुझे 100% रिजल्ट चाहिए। एग्जैक्टली 99.9 नहीं, 99.9 भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच किलोस्कर जी। थैंक्स टू द प्लेजर सर, इट्स ये क्रेडिट टू बोथ ऑफ यू। नहीं सब विनम्र प्रणाम। हाँ, और हमारे फ्रेंड्स सबको विनम्र प्रणाम। मेरा अभी कुशल सरोगी, ये निशांत आप इसका जानकारी होगा, ये राजेश सरोगी है ना, उसका सन है। राजेश जी वो गुवाहाटी वाले। हाँ, उनका सन है ये। अच्छा, हाय कुशल, कैसे हैं? कुशल है कि नहीं मेरा पता नहीं है, वो नहीं देख पा रहा है, लेकिन वो उनके बात में बात करेंगे। लेकिन वो उनका लड़का है, उनका बोल के कर दिया उनको भी। ग्रेट, ये बिजनेस सक्सेशन कर रहे हैं। हाँ, बिजनेस सक्सेशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इज मिस्टर नरेंद्र कुमार, ये भी बहुत मेहनत जी। नरेंद्र जी बहुत ये मेरा ख्याल से तमिलनाडु का है। अच्छा, ग्रेट नरेंद्र। नरेंद्र जी है कि है तो चेन्नई फ्रॉम चेन्नई। पूरा पैन इंडिया हो गया ना ये, तो हम लोग का ये हर जगह का है, एक स्टेट का रिप्रेजेंट कर दिया जो कमांडर लोग। हाँ, बोल पाछू आ नहीं करवानी लाइक भगवती पारक मिस्टर पंकज गेरा दिल्ली से। हाय मिस्टर पंकज, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने सीएफए किया है, सीएफपी किया, आपने तो बहुत सारे कोर्सेज किए, आपने ये भी किया और एक दिन में आपने प्रिपेयर किया, ये बहुत ही इंस्पिरेशनल। पता नहीं आपने कैसे किया, लेकिन हैट्स ऑफ टू पंकज जी, वेरी हैट्स ऑफ टू गौतम दा अनूप, जिन्होंने बड़ी हेल्प की मेरी, अदरवाइज नहीं होता। थैंक्स टू देम। फिर भी एक दिन में पंकज जी 1-2 टिप्स तो आपको देना ही पड़ेगा हम सबको। सर बीवी गालियां सुनी थी उस दिन, सवेरे से शाम तक बैठा रहा था, तो सुनने के बाद कुछ नहीं करते, संडे का दिन बर्बाद करते, उसको काफी सुना था। बट यस, इट इज जस्ट मतलब ये कि देयर इज नथिंग ग्रेट। एक बार माइंड सेट करने वाली बात है। वंस यू सेट योर माइंड, देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्वेश्चन सिर्फ माइंड का होता है कि यू हैव टू ओनली सेट योर माइंड। ले लिया तो चैलेंज ले लिया तो हो जाता है। देखिए, वर्ल्ड में जितना जो बड़ा काम हुआ था, 11 सितंबर को आपको पता है ट्विन टावर का खत्म हुआ था 11 सितंबर में। तो उसका जो जिसने कराया, जो माइंडसेट का जो बात बोल रहे हैं ना, तो जो पायलट ने किया, तो पायलट तो छोटा मोटा आदमी नहीं है, कितना उनका माइंडसेट करा दिया, तो ट्विन टावर का कर दिया। तो हम लोग वही सोचा कि उसका अच्छा काम में लगाओ, माइंडसेट करो, जिसका एग्जाम क्लियर करना है तो कर पाया, तो जिसका हम लोग इसका माइंडसेट कर पाया, वो लोग क्लियर कर दिया। ग्रेट। दिस इज फर्स्ट टाइम, ये हम लोग का वो जादू वहीं पे है, माइंडसेट कराना। ग्रेट माइंड मैपिंग। ग्रेट। नहीं तो कोई इतना कम दिन में, आप तो बोलिए ना, ये इतना बड़ा सिलेबस, इतना आसान बात नहीं है। आसान बात बिल्कुल भी नहीं है। अरे ये तो कोई तो नहीं बोल पाएंगे कि ये तो स्कूल का एग्जाम नहीं है, तो टुकली मार के करके देखा, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये तो नेगेटिव मार्क है, सबसे बड़ा बात है यहीं पे। बिल्कुल। थैंक यू पंकज जी, ये आपका एडवाइस सबको चाहिए, सबको यहीं पे जो टुबेयर कमांडोज है, पूरा दुनिया एमएफडी जो लोग है, ये लोग को आप लोग का ये चाहिए, एडवाइस चाहिए, नहीं तो ये लोग नहीं कर पाएंगे। थैंक यू, आप लोग हो, हम आपके साथ हैं। नहीं ना, वो तो हम लोग तो है, इसलिए निशांत को भी हम लोग साथ में ले लिया, क्योंकि वो यंग, वो मेरा से 10 गुना पावरफुल है, तो उनका हम काम में लगाएंगे अगला दिन। तो मिस्टर राजशेखर, हाय राज जी, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले थे ना, जो अभी स्टार्ट। यस, बहुत यंगेस्ट है हमारा टीम में, का एक्सपीरियंस है। उसके बाद भी मतलब कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि ये जो है, ये क्वेश्चंस मेरे ख्याल से बहुत रैंडमली पूछे जाते हैं, कई सारे कंसेप्चुअल होते हैं। एकदम पूरा कॉन्सेप्ट का क्लियर होना चाहिए, नहीं तो ये क्लियर नहीं कर पाएंगे। और 3 साल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, बहुत टाइम लगता है, बहुत बड़ी बात है, जो आपने इतना जल्दी आपने कवर अप कर लिया। थैंक्स टू गौतम दा एंड सरबानी जी हु गाइडेड यू। एब्सोल्युटली बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पिरेशनल रहा ये। थैंक यू वेरी मच।
रामकृष्ण गोकुल दास सेनाय, ये भी बहुत शॉर्ट टाइम में कर लिया, ये ह्यूज। और राम जी मेरा ख्याल से वो आउट ऑफ स्टेशन है, इसलिए नहीं अभी ग्रुप में नहीं है। सुबीर बसु, इनका तबीयत खराब है, ये सीए भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, तो ये भी, और इसका जॉब बोला वो उसी टाइम ना डेट एक्सटेंशन नहीं था, वो उनका टैक्स फाइल के लिए बोला कैसे करेंगे, मेरा इतना क्लाइंट है कैसे करेंगे, आराम वो डेट एक्सटेंशन हो जाएगा, आप इसमें कर लीजिए। अच्छा। तो वो कर लिया इसमें, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री। हाँ, क्यों सितंबर महीने तो इसका फाइलिंग का डेट लास्ट डेट था, तो डेट तो बाद में एक्सटेंशन हुआ। जी। तो उसका आज बहुत बुखार है, इसलिए अभी गुस्सा तो निकल गया। तो अच्छा। नेक्स्ट इज मिस्टर बिपिन अग्रवाल, जो पंजाब का है, जो है मिस्टर बिपिन जी, ये तो हमारा ओपन बैट्समैन है। जी। होशियारपुर के हैं। होशियारपुर का है। जी। आप नाम तो जस्टिफाई कर रहे हैं, आप काफी इंटेलिजेंट। होशियार एकदम, नाम का जस्टिफाई कर दिया ये। तो हो गया, खत्म हो गया हमारा जो कमांडर है। तो ये हम लोग का जो हुआ, सब कुछ हम लोग सबको ये थोड़ा, आप ये जो कहानी है ना निशात, 12 कमांडर का, ये आप গৌতম দা অনুপদারটা বাদ পড়ে গেল, অনুপদারটা না, অনুপদা के आगे দিয়ে দিয়েছি, অনুপ मुखर्जी आगे, ये पहले हो गया अनुप मुखर्जी का, ये रिपीट हो गया। तो मेरा ख्याल से ये जो एक्सपीरियंस हुआ, तो ये अगला दिन हम लोग ये निशांत को बोलेंगे, जब ये जो 12 कमांडर है, एक इनको लेके एक आप राइट अप कर सकते हैं, 12 कमांडर को ये लोग का जो कहानी कर दिया ना, तो ये पूरा इंडिया का एमएफडी के लिए ये अच्छा होगा, क्योंकि एक ये बड़ा बंदा 12 स्टेट का है, कोई एक स्टेट का नहीं है, और ये कितना चैलेंज लेके किया है, ये सबके लिए एक मोटिवेशन हो जाएगा। तो आई थिंक वी आर, शर्मानी मैडम, व्हाट आपने क्या सोचा है ये नया सिलेबस के लिए? 2-4 शब्दों में बोलेंगे तो हम लोग इसके बाद क्विट करेंगे। 9:16 हो गया, 5 मिनट में हम लोग को क्लोज करना है। So I would say regarding the new syllabus is much more tougher than the earlier one, and the segregation of marks that has been given is also completely changed. I just want to share the screen where it is shown the segregation of marks. Gautam, can I share it? Yes, you can. निशांत 5 मिनट हम लोग क्विट कर देंगे। जी। Just a minute. ये कैसा लग रहा है निशांत जी? ये हमारा प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम तो आपको कहीं भी अटेंड नहीं किया है। हाँ, काफी इंटरैक्टिव है, तो सब लोग बोल पा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है देख के। हाँ, और ये सब क्या है ना, को इंटेलेक्चुअल है, ऑल आर। So I would say this would be the segregation of marks. The examination consists of 90 multiple choice questions and 9 caselets. So there will be caselets in ISM 10A also. So as you have heard that previously we used to have a theory questions, only one liner. There was no caselets in 10A. So and now there will be caselets, case-based questions. So these questions will be related to the theory part will be heavy. In ISM 10B, previously examinations which was there we used to have caselets and case studies both. So now we will be having the caselets in ISM 10A. So the the marks that is being segregated is that 90 marks, 90 questions of 1 mark each, and 9 case-based questions. So 6 cases, each case with 5 questions of 1 marks. Okay, so that equals to 30 marks, and 3 cases with 5 questions of 2 marks each. That comes to another 30 marks. So the total marks will be 150. So, and the examination should be completed in 3 hours. We used to have the examination in 2 hours. Now it could be 3 hours.
The passing score for the examination is 60%, which is 90 marks out of 150, which is mandatory. There shall be negative marking of 25% of the marks assigned to a questions. So I have almost gone through the chapters. There are many new additions and much more detailing is happening in this book, because if I just want to share a few just glimpses of it, these are the things which you haven't done it. That is time, value, money, which is very important. You haven't done it previously, but there, we had this as a small topic. But here you will be having a detailed explanation of all these things, which will actually help you in the real, in your real work life. I would say there is another chapter where there will be caselets based on this preparing of household budget. So these are micro things which you have to do it actually with the investor when they come for the financial planning. There is also a very good point which has been identified as a special thing, that is the contingency planning, creating a budget and a saving plan. So these are the new things which are being incorporated in this. There will be a separate chapter on leverage and debt counseling. So I would say that we will soon be starting up classes with NISM 10A. And I have spoken to Gautam Da that hopefully we will be trying to complete this, the number of classes that we will be having. We had a crash course in the previous one. So I did only 10 classes. 10 classes means I did 10 classes or 6 classes. I did 6 classes actually in NISM 10B, and it was a very short time. And Gautam has contacted me, and I had actually given the consent that yes, I'm going to do it. So, but now since the syllabus has increased, so we will be requiring at least minimum 10 classes has to be done, and case to case basis, we might increase the classes, but our batch will be the first batch to sit for the examination in the month of middle of December or end of December. So middle or end of December, maybe means the second half, that is after 15th of December, they are going to sit for the examination, and we will be preparing them for that with the latest question papers, so that they are be able to qualify it. So I would say, tell that regarding this inauguration of this, or the orientation that we will be having it, very soon after Lakshmi Puja. Tentatively, Gautam Da, we are deciding on 24th. Yes. Yes, 23rd or 24th, and we will be announcing in the group itself. In all the groups, it will be given, and we will be doing it. And regarding the rest of the things, Gautam Da is going to say it just now, but I want all of you who has gone through the training which we had in this. So if you are interested, I would say don't get met. I won't say interested. It's mandatory to be a part of this training, those who haven't completed the NISM 10A, and you can recommend to those people who haven't completed NISM 10A to sit for this training, because this will be an integral part in the future days to come. Because now you have heard from Nishant itself, mostly we will be moving into the advisory mode rather than an MFD. Or as a MFD also, everybody requires an advisor who will be doing all the planning and all. So there will be some surprises for you regarding regarding the course, regarding the course fee, which Gautam Da will soon announce you. So Gautam Da, can you tell them? Bhupender Srivastava ji पूछ रहा है कि have booked my exam on 25th of this month. No, sir. You will not be able to pass. You will not be able to pass the new syllabus, because new syllabus completely another too old. So don't jump on this time at this time. Be prepared. After prepared, you should jump. Otherwise, now exam fee 3,000 instead of 1,500.
So every moment, yeah. And I would say that there will be caselets. I have gone through the book. There are very small caselets, but there will be caselets like this. I'm going very fast just to show you a glimpse because I've gone through the book in detail. So suppose there is this is the type of caselet which is being given. Vinod, 40 years old, earns 2 lakhs a month. He's able to save 40,000 a month after meeting all the routine expenses of the family, paying the loans of his house, car, etc. His investment include the tax savings, bank deposit, all these things. How he would go for a financial planning. So there will be a caselet on this. So you haven't done this. So if you sit for the examination, it will just be a test for the exam hall. It won't be actually an exam. So please don't go for. Yes, yeah, even that's math only. Only two number marks only there. Yes. Not more than. Nishant, whichever you have given the perfect plan, that was caselet, not case study. Yes. According to NSM, that was caselet. Caselet, right. Not So I can study. see, Dada, this is 450 pages of document. Ah. This is very comprehensive. I guess people may take longer time to clear this examination now. Yes. The difficulty level has been increased. Yes. So at least Nishant, I would say that at least I have to take 10 classes, minimum of 10 classes, and with a detailed study also, because I now I'm not being able to it is very difficult for me to judge where should be which pages are very important, where are the places very important, because NISM 10A was not related to caselets. Right. Now they have related it to caselets. So I have to judge from where it should be done. So I would take at least, they should go through at least 1 month training, maybe two days of training a week, but they should go through a training procedure like that, and they should go through all the pages how I have taught it to revise on that. So it cannot be a crash course now. It will be very difficult for me. Yes, and now our strategy also, we have completed, say, 2 or 3 chapters. After complete the 3 chapters, we taken the exam because how they are realize that chapters. So if after that we start the next chapter, otherwise they can't do it because the completely new syllabus. Right. So we need to cover and save. Otherwise, they can't. So we need to take some time, and serious people who people are think that I give just pay the amount and I get the certification. Don't think that this exam is not that. Dada, completely. Dada, since there is no CP in RIA registration, so existing RIAs may also find it difficult. Yes, exactly. And no CP. No CP. Even near future, I think CP also will be removed from the NSM 5 also. Okay. Be ready for that, because they are also introduce. अब तो देख लिया क्या इंट्रोड्यूस कर दिया उसका AIF का जो एग्जाम वो भी कंपलसरी कर दिया. PMS का वो तो चाहिए सबका. Right. So now the industry is educated. So we should be update ourselves. Otherwise, we should leave the industry. दादा वो PMS का भी उसका कराएंगे, करने वाले हैं ना? एकदम करने वाले हैं. पहले देख लेते हैं. वो तो करेंगे, जरूर करेंगे. वो करना है, वो तो कंपलसरी हो गया ना MFD के लिए. मेरा नाम लिख देना फर्स्ट. हाँ ठीक है, वो तो करेंगे. तो ये हम लोग का जो है ना, ये हम लोग का 10 to 12 क्लास की अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मिनिमम हम लोग 10-12 क्लास में इसका करने का कोशिश कर रहा है. और अभी 10 classes is compulsory, Gautam. 10 classes has to be completed, has to be, yes, because this is a huge course now. 1.5 times already 2 hours or 3 hours हो गया. ट्रेनिंग फीस का एग्जाम फीस का डबल हो गया, 1500 से 3000 हो गया. तो सब कुछ बुक का पेज भी 1.5 हो गया, 290 पेज का 500 पेज हो गया. तो ये के लिए टाइम लगेगा, मेहनत बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में है. क्या है ना, हम लोग जो करने जा रहा है ये
पहला हम लोग रोड निकल रहा है, ये पहाड़ काट के न्यू रोड बनाना पड़ रहा है। इसके बाद जो आएगा वो तो रोड तो मिल गया, अभी तो कोई रोड नहीं है पूछने में, तो वो रोड करना हम लोग का काम हो गया। नया सिलेबस का रोड मैपिंग करना, पूरा नया रोड बनाना पड़ेगा। तो ये हम लोग सोचा है ऐसा, और इसमें हम लोग ये फ्री में नहीं होगा, ये क्लियर बात है कि बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग NISM 10A के लिए हम लोग सोचा है इसका कॉस्टिंग 8,000 होगा, तो उसका 25% डिस्काउंट करके हम लोग 6,000 में करा देंगे, क्योंकि सबका होगा। और ये हम लोग मैक्सिमम 30 to 33 बैच साइज होगा, इससे ज्यादा हम लोग टैकल नहीं कर पाएंगे एक बैच में। तो हम लोग एक ही बैच स्टार्ट करेंगे, जो सीरियस पीपल होगा उन लोग के ही कराएंगे, जो सीरियस नहीं होगा ओनली पैसा देंगे, हम लोग उनका नहीं लेंगे। जो सीरियस नहीं होगा वो, क्योंकि वो बदनाम हो जाएगा, तो हम लोग नहीं चाहते हैं। ओनली सीरियस पीपल अक्रॉस द कंट्री, ओनली हम लोग जो पहला जो बैच होगा न्यू सिलेबस का, वो 30 पीपल का होगा, मैक्सिमम 30 to 33। इससे ज्यादा हम लोग देख लिया, बहुत कुछ कैपेसिटी नहीं है इनको टैकल करने में। इसमें जो टाइम देना पड़ेगा वो टाइम हम लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग का मेन मकसद है, हमारा लोग 99% नहीं सोचता है, 100% सोचता है सबका पास कराना है। तो उसका आखिरी दम तक उसका ट्रेनिंग देना, जब एग्जाम क्लियर जब तक नहीं होगा। किसी किसी का को तो एक बार 2 times 3 times दे हो सकता है, लेकिन उसका जब तक क्लियर नहीं होगा तो उसका सपोर्ट करना, ये मेन हम लोग का काम है। क्योंकि एक एग्जाम दिया तो 1 नंबर 2 नंबर से छूट गया, तो वो लोग का हम लोग क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट विदिन 7 days दूसरा डेट लेना है, वो 7 days में वो क्लियर हो जाएगा। ये जो स्ट्रेटेजी है, ये NISM 10A 10B विदाउट स्ट्रेटेजी नॉट पॉसिबल, जितना नॉलेजेबल हो नॉट पॉसिबल। सो वी नीड टू सीरियस पीपल। तो जो लोग चाहते हैं वो लोग को ही करेंगे। हम लोग ग्रुप बनाया, हम लोग को इसका कट ऑफ सब कुछ दे देंगे, और हम लोग इसका 23 और 24 इसका ये ओपनिंग सेशन रखेंगे, और नवंबर से एकदम पूरा दिसंबर का फर्स्ट वीक में सबको एग्जाम स्टार्ट कर देंगे। 2021 में हम लोग का पहला बैच निकलना पड़ेगा 2021 में। और ये निशांत आपको आज का ये वादा कर रहा है, हम लोग जो बैच 30 पीपल लेंगे, हम लोग का सोच है वो 30 पीपल का ही कराना, माने एग्जाम क्लियर कराना, ऐसा। तो वैसा ही चूज करेंगे। वो ओनली पैसा दे देंगे, उनके पास बहुत पैसा है, वो पैसा दे देंगे, हम लोग को नहीं लेंगे। जो पढ़ाई नहीं करेंगे उसका बात दे देंगे। इसलिए हम लोग थोड़ा 1-2 क्लास में पता चल जाएगा उसका चाहत क्या है। जो नहीं ऐसा चाहेंगे वो लोग नहीं कर पाएंगे। यही हम लोग का बात है। बातों बात में जो ग्रुप बन रहा है, हम लोग एक गूगल फॉर्म बनाया उसके साथ, क्योंकि गूगल फॉर्म से पता चल जाता है जो वो कहाँ का है। क्योंकि इसके साथ और एक चीज है कि उन्होंने का एग्जाम सेंटर ओपन करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। कि जो जहाँ का हमको पता नहीं है वो कहाँ से एग्जाम देने जा रहा है, वहीं पे सेंटर खुला नहीं है, तो कैसे एग्जाम देंगे। तो उसका तो अरेंजमेंट करना है। तो ये बहुत बड़ा ये प्लानिंग का काम होता है। जी बिल्कुल। तो ये हम लोग करने जा रहा है। तो मोटा मोटी ये बोल दिया। हम फ्लोर का 1-2 मिनट का ही बोलेंगे, क्योंकि रात बहुत हो गया। कुछ कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो निशांत जी है, मैडम है, किसी का बोल लीजिए। हम लोग अभी क्विट करना है। ओपन टू ऑल, प्लीज एनी क्वेश्चन। सर मैं इस प्लेटफॉर्म का यूज करना चाहूंगा निशांत जी और इनकी पूरी टीम कैफे म्यूचुअल को थैंक्स करने के लिए। मेरी फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हो रही है इनसे। मतलब कैफे म्यूचुअल आज के टाइम में हम फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए एक मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां हमारा माइंडसेट पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाते हैं ये लोग। एग्जैक्टली। इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है और हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, बड़े पॉजिटिव तरीके से ये हमारे सामने रखते हैं ना। तो इनके आर्टिकल्स डे टू डे और बढ़िया से बढ़िया हो ही जा रहे हैं। तो मतलब वो तो ऑथर बन गया ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मतलब ना जब भी हमारे फोन पे ईमेल आती है कैफे म्यूचुअल की तरफ से कोई आर्टिकल आता है ना, तो हम उसको खोल के देखते हैं जरूर है आज के टाइम में।
तो ये बिग थैंक्स टू यू सर निशांत जी, मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा हूँ तो आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। थैंक यू सो मच, बी इन टच, है ना। आप लोग रहेंगे तो आप लोग से फीडबैक मिलते रहेगा तो हम लोग अच्छा काम करते रहेंगे। जैसा सबसे बड़ी बात जो है ना, जो आपका पॉजिटिव जो आपके आर्टिकल्स होते हैं ना, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इंडस्ट्री में ना बहुत सारी नेगेटिव न्यूज भी हैं, बट आप मैक्सिमम नेगेटिव उनको, है, हाँ मैक्सिमम जी नेगेटिव। मैक्सिमम नेगेटिव है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, बट जैसे आप उनको फिल्टर करके या जैसे वो हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर कम्युनिटी के लिए उसको पॉजिटिविटी लेके आ सकते हो, वो आपका जो बैकएंड के ऊपर काम है ना, वो रियली मार्वलस है। हैट्स ऑफ यू। थैंक यू सो मच। हम यहीं पे जितना है सबको एक बार तो बुलाएंगे, जब कैफे का मुंबई में जो ईयरली का जो प्रोग्राम होता है, तो वहीं पे आने से सबका पता चलेगा जो कैसा किस लेवल का प्रोग्राम होता है। हम वहीं पे जितना इंडस्ट्री का जितना CIO CEO सब एक साथ एक टेबल में बैठ के जो होता है, हम इंडिया में कहाँ पे नहीं देखा है आज तक मेरा उम्र में, चाहे वहाँ। और इसलिए निशांत का साथ तो मेरा इतना दोस्ती हो गया कि निशांत तो बहुत बार हमको रोका, अरे निशांत बोले दादा आप थोड़ा ये लोग को तो पर्सनल है, अलग पर्सनल आप है तो मेरा क्या प्रॉब्लम है। सर वो प्रोग्राम भी कमांडो ट्रेनिंग जैसा ही रहता है। एकदम एकदम, वो बहुत कुछ क्योंकि सीखा है, पूरा बहुत कुछ सीखना मिलता है एक बहुत दिन कुछ सीखना में। मिलता है। राइट वो जो लाइक कुछ है कमांडो ट्रेनिंग, क्योंकि उसमें सब लोग डिफरेंट, आप बोले ना सब ये जो लोग आते हैं ना, बहुत डिफरेंट एंगल से बताते हैं और बहुत नॉलेज मिलता है। रियली और वो जो मेंटली प्रिपेयर हो जाए, विपिन जी आप जाएंगे तो आपका भी गिफ्ट मिल जाएगा, उसका बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम बनाता है, उसमें बहुत सारा अच्छा गिफ्ट देता है। हम लोग तो बहुत कुछ मिला है, ऐसा नहीं है वो कॉम्पिटिटिव रखता है, जिसका वो काबिलियत है वो ही मिलता है, ऐसा नहीं है, सबके लिए ओपन है। हमारी ना छोटी सी लोकेशन है, तो यहाँ पर प्रॉपरली वर्किंग सिर्फ 5-7 IFAs हैं। तो कभी हम लोगों ने कभी इस मामले में सोचा भी नहीं है कि हम मुंबई जाके किसी इवेंट को अटेंड करें, बट लेट्स होप इन फ्यूचर, लेट्स सी, जैसे जैसे हमारा EVM ग्रोथ होगा हमारे भी ड्रीम बड़े होंगे फिर। बिल्कुल के साथ मत सोचिए, ड्रीम बड़ा रखिए। जी जरूर आए मुंबई को, हम मिलते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा बढ़िया प्रोग्राम है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, थैंक यू। हाँ तो जी थैंक यू, रियली गुड प्रोग्राम। मैंने थैंक यू सो मच। 5-6 बार अटेंड किया है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच श्रीरंग जी। तो थैंक यू सो मच। और एनी मेरा ख्याल से किसी का कोई क्वेश्चन तो कोई है तो बोल दीजिए, नहीं तो हम लोग क्विट करेंगे आज का वोट ऑफ थैंक्स देके। एनीवन? आई थिंक हो गया। तो मेरा ख्याल से अनुपदा है हमारा अभी इसमें। अनुपदा? अच्छी दादा अच्छी। Yes, please conclude the session with honor to Madam and Nishant ji and all the participants. Conclude the session with honor. Thank you, Nishant ji, for being with us and for sharing our achievements and success. This is great that somebody from the fraternity has come to encourage us. This is something amazing. We are collectively have achieved it. So this platform goes collectively to all for their success, for the effort. This shows that how a collective effort can make the difference. Thank you, Sharmani madam, for your effortless and tireless contribution to our life. This is something amazing. This has made us a different human being as well, altogether. And Gautam, I'm speechless for you. This is the kind of effort you're putting it, and this is something our fraternity will always remember. Thank you all. About revolving credit. Yes, revolving credit. Before exam, I am asking for how again, far you know about repeat, revolving credit. Yes, and again I repeat, you both of us has put us on a Mangalyaan, and we have landed to Mangal as 10B. It was a rocket like launching. We have launched at Mangal. Thank you so much. So everyone, good night. सब अच्छा रहे। जो लोग चाहे इंडिया में, हम लोग चाहते हैं NSM 10A 10B का
क्योंकि NISM 10A 10B ज्यादा नहीं क्लियर कर पाएंगे तो अच्छा IFA नहीं बन पाएंगे। और अगला दिन कोई चाहता है RIA बनना तो इनके लिए तो जरूरी है, ये बिना और तो नहीं दादा होगा। एक रिक्वेस्ट है, अब हम सबको आपको इस जर्नी में, ये जो लर्निंग जर्नी है, हमें जोड़ के रखना। ये 10A आ रहा है, अब 10A में हम एग्जाम तो नहीं देंगे, बट वी शुड आल्सो बी द पार्ट ऑफ इट। एग्जैक्टली। तो सबके लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, नमस्कार। नमस्कार, बाय, नमस्कार, टेक bye. केयर, बी इन टच, बाय। Bye.